This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخنوس کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے مہمان صدر بزم حسان حاصل پور، بزم شعور کے سرپرست، نعتیہ مجموعہ عرفان و عقیدت کے خالق، معروف نعت کو شاعر جناب ابراہیم حسان اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ حشر میں اس طور سب کے سامنے جانا گیا، حشر میں اس طور سب کے سامنے جانا گیا، اور حضرت حسان کی نسبت سے پہچانا گیا۔ جناب ابراہیم حسان، آپ کو پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ اکمل ویس صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مکس نیوز کے قیام پر، اور بدلتا زمانہ خصوصاً جنوبی پنجاب کی توانا آواز ہے، مسائل اجاگر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور جنوبی پنجاب کی آواز اس کو میں کہوں گا، جزاک اللہ، یہ آواز ہے جنوبی بلا پنجاب شبہ بلا شبہ۔ حسن صاحب، یہ دیکھیں نا کہ جو پرنٹ میڈیا ہے ایک طرح سے اس پر زوال آ گیا، اس کے باوجود ایک اخبار کا نکالنا اور 1 سال کی تکمیل، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہمت اور جرأت کا کام ہے۔ یہ جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس ڈیجیٹل دور میں پیپر ورک، پیپر نکالنا، جوئے شیر لانے کے جو بڑے بڑے پیپر تھے، جو دنیا کے، یہ پاکستان کے اردو کے بڑے بڑے پیپر تھے جو اربوں روپے کما چکے ہیں، وہ جب میں ان کی حالات دیکھتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح یہ ٹمٹماتے چراغ سحری ہیں، بالکل ایسی، بالکل ایسی ان کی حالت اس طرح دیکھتا ہوں، اور اس میں اس بندے کی بڑی ہمت ہے، بلا شبہ، یہ اس اکمل وینس کی لگن ہے، یہ اس کا اخلاص ہے جو یہ چلا رہا ہے، بلا شبہ بلا شبہ۔ ورنہ یہ تو جس طرح بقول غالب صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، یہ تو صحیح فرمایا آپ نے، بالکل۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی کلمات محبت کو قبول فرمائے، بہت شکریہ۔ اچھا ابراہیم حسن صاحب، حاصل پور جو ہے وہ سرزمین علم و ادب کہوں تو بے جا نہ ہوگا، بڑے بڑے نامور شخصیات، بڑے بڑے نامور لوگ، شعراء، ادیب، قلمکار وہاں پیدا ہوئے، انہوں نے بڑا نام کمایا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجئے کہ وہاں کون کون سی ایسی جید و مستند اور قداور شخصیات تھیں جن کی وجہ سے حاصل پور کو پوری دنیا میں ایک دوام حاصل ہے۔ سب سے بڑی شخصیت جو حاصل پور کی پہچان بنی وہ تھے حضرت عزیز حاصل پوری، جو وہاں سے ہجرت کر کے اسی مدینہ الاولیاء ملتان میں تشریف لائے، اور انہوں نے یہاں آ کے اپنے فن کی آبیاری کی، اپنی علمی ادبی پیاس بھی بجھائی، اور لوگوں کو سیراب بھی کیا۔ سب سے بڑی شخصیت تو وہ ہیں، ٹھیک ہے، آج بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا فیضان ہے ہم پر، کہ آج حاصل پور ان کی وجہ سے شہر نعت ہے، کہ 15 سے زائد شاعر جو ہے ایک چھوٹے سے قصبے میں باقاعدہ نعت لکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، باقاعدہ نعت کہتے ہیں، باقاعدہ نعت کی محافل سجتی ہیں، نعت کے مشاعرے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عزیز حاصل پوری رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے، کہ ہمیں تو ان کی ہجرت بھی کام آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ملتان میں آئے، لیکن ان کا فیضان جو ہے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ حاصل پوری کا جو تھا نا وصف نسبتی، وہ نسبت نہیں ختم کی انہوں نے اپنی وصف نسبت نہیں ختم کی، یہ ان کا اعزاز ہے، حاصل پور کو یہ شرف حاصل ہے۔ گویا نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے، اور آدمی معتبر بھی ہوتا ہے، معتبر، جو گدائی کے تخت پر بیٹھے بے گماں تاجور بھی ہوتا ہے۔
बिल्कुल, वो तो गदा ही उस दर के थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हजरत अजीज हासिलपुरी तो गदा ही उस उसी दर दर के थे वाह जहां से सबको मिलता है, सबको सब कुछ मिलता है। वाह वाह वो वाह तो वाह कासिमी नेमत के दर से जुड़ गए। वाह 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 वाह, सबको मिलता है और सब कुछ सब मिलता है। कुछ वाह मिलता है, वाह वाह। वो उस कासिमी नेमत के दर से जुड़ गए और इस तरह जुड़ गए जिस तरह जुड़ने का हक था। अच्छा, इसके अलावा हजरत अजीज हासिलपुरी के अलावा और कौन कौन सी ऐसी शख्सियात जिन्होंने कोई नसर लिखी या किसी हाँ, और शोबे वहाँ में? ज्यादा काम, दीनी काम ज्यादा हुआ है अच्छा नस्र में। अच्छा दीनी कुतब की तादाद ज्यादा है अच्छा। और जो है कहानी वाला अदब, हम्म। उसके कुछ बंदे हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, हासिलपुर में हम्म कुछ बंदे पैदा हुए कहानी वाले अदब के, हम्म नावल, अफसाना। हम्म। तो एक नौजवान है प्रोफेसर नईम गुम्मन, उसका खाकों का अच्छा शख्सी खाके का मजमुआ भी आ चुका है। अच्छा। हाँ, जो कि अब उर्दू अदब में ना होने के बराबर शख्सी खाके लिखे जा वाह रहे वाह, हैं। उस नौजवान ने हिम्मत की है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। हाँ जी, ज्यादातर शोरा जो हैं वो नात ही कह नात रहे कोई, हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा माजी की तरफ लौटते हैं। स्कूल का ज़माना, जी इब्तदाई जी स्कूल का ज़माना, जी जी। तो वो कौन से असातिज़ा कराम थे जिन्होंने किरतास व कलम से आपके रिश्ते को मजबूत किया? बज़्म अदब में आपने शिरकत की, क्या हाँ, हाल अहवाल अब्दुल था? हमीद कुरैशी साहब थे, जी। वो नात गो शायर थे। तो वो असेंबली में आके नात कह देते थे। अच्छा। हाँ, बचपन में उन्होंने मुतासर किया। वाह। तो फिर बचपन में जो रेडियो सुनने का शौक था, हुँ। तो जब मुझे पता चला कि खैरपुर टामे वाली के बुजुर्ग शायर हैं, वो अपना कलाम पढ़ रहे थे, हुँ। कलाम शायर बाजुबान शायर, और उस वक्त खैरपुर टामे वाली हासिलपुर तहसील का हिस्सा थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं बड़ा मुतासर हुआ। मैं हजरत रियाज रहमानी साहब के पास गया। हुँ। मैंने बकायदा शागिर्द होने का मुझे एजाज हासिल है वाह। उस हस्ती का। उनके बहुत सीनियर शागिर्द थे जफर भट्टी साहब, उन्होंने उनके जिम्मे लगाया हुँ। कि मैं बहर आप सिखाया करें, फिर जो ये लिखा करेंगे मैं भी देखा करूंगा, आप भी देखा करेंगे। हुँ। यानी मुझे मॉनिटर मेरा उनको वाह, मुकर्रर और जफर कर भट्टी दिया। साहब को मॉनिटर बना हाँ, दिया। मॉनिटर बना दिया। वाह। और खुद भी शफकत करते थे। अच्छा। हाँ, उनके बेटे थे रशीद उस्मानी साहब, हुँ। सीनियर शायर थे, वो भी बड़ी शफकत करते थे। बड़े प्यार से मुझे सिखाया उन्होंने, वाह उरूज सिखाया, सनाए बदाए। वाह वाह। अच्छा, कोई याद है कि कोई पहला शेर कब कहा या कौन सा कहा, कोई है ज़हन में कोई? हाँ, ये तो याद नहीं है पहला कब का, लेकिन पहला था नात का ही। अच्छा। हाँ, नात का ही था पहला शेर भी। हुँ। तो गजल तो फिर वहाँ जो थी ना, वो मश्क के तौर पे शुरू की बज़्म गई। रियाज रहमानी में शुरू कराई गई। अच्छा। हाँ, तो वो जो मश्क थी, मुशाहदा था गजल का, हुँ। वो मैं समझता हूँ कि नात के काम आया। वाह 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 वाह। खूब खूब खूब, हाँ, यानी वो मश्क गजल सुखन जो है वो। गजल की मश्क, मुशाहदा, मुतालिया, वाह। वो नात के काम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये फरमाइए कि हासिलपुर में जो 15 से ज़ायद नात गो शोरा कराम हैं, जी तो वहाँ जो आपका प्लेटफॉर्म है बज़्म हसान का, जी। तो इसके ज़ेर एहतमाम क्या-क्या वहाँ अदबी जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती रहती हैं या हो रही हैं? पहले हमने तरीब मुशायरों का सिलसिला शुरू किया हुँ। कि नए आने वालों की प्रैक्टिस हो, मश्क हो। ठीक है, फिर हमने माहाना मुशायरा शुरू किया। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद जो थी, अब वो लिख लेते हैं, हुँ, हुँ।
زمین موضوع کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کبھار بتا دیتے ہیں کہ یہ زمین موضوع کی ہے, کبھی نہیں بھی بتاتے تو لکھنے کے قابل ہو گئے ہیں. اب تو ماشاءاللہ ان کی کتابیں آ رہی ہیں, اور اس میں ایک نام ہے محمد امین ساجد سعیدی کا, جس نے قومی سیرت ایوارڈ بھی حاصل کیا اور صوبائی سیرت ایوارڈ بھی حاصل کیا. یہ آپ کے شاگرد رشید ہیں؟ جی جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ 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 واہ, خوب خوب. غزل میں عبید اللہ نزاکت ہیں. اچھا, ہاں, کبھی موقع ملے تو اس کی غزل سنیے گا. واہ, اس میں نزاکت پائی جاتی ہے. ہاں, نزاکت پائی جاتی ہے اس میں. واہ. ناظرین, جناب ابراہیم حسان سے گفتگو جاری ہے, اور ابھی آپ نے سنا کہ قومی اور صوبائی سیرت ایوارڈ یافتہ جناب محمد امین ساجد سعیدی وہ ان کے شاگرد رشید ہیں. یقیناً ان کا بڑا نام ہے. جب شاگرد کا نام ہوتا ہے تو استاد کا نام بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ بڑا ایک اعزاز ہے. تو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے, کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ابھی ممی کا ہے یہ دعا, روز شمع کی ہو محفل, رونق انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, تکرار بھی یہی پیار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل, رونق انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا, اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا, ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں, مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ, جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر, دفتر, مسجد, شاپنگ مالز, ہاسپٹلز, کسی بھی جگہ فروٹس, ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ, جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1, 3, 5, 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے, پیسے تیری مرضی دے, لیکن میں کو واش روم, ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو, میں تا ایویں وز کرے سا, واش روم ایویں جگمگ ہو سی. ماسی
ਵਿਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਵਿਜ਼ ਆਇਆ दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। ਵੱਲ ਲਿਟੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ। इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਓ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੈਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਣੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਤ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। जो उनके दर की गदाई पर नाज करता है, जो उनके दर की गदाई पर नाज करता है, खुदा भी उसको बहुत सरफराज करता है। तो यकीनन ये शेर जनाब इब्राहिम हसन पर बहुत सादिक आता है कि इब्राहिम हसन साहब एक बड़े ज़ूदगोश शायर हैं, हमारी जहज शख्सियत के मालिक हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है। इब्राहिम हसन साहब, वहाँ जो बज़्म शऊर की बुनियाद डाली गई, जिसके आप सरपरस्त हैं, तो बज़्म शऊर जो है वो कैसा शऊर बेदार कर रही है? हमने जो इब्तदा की उस शऊर की कि जो मुशायरा करेंगे, जो अदबी काम करेंगे, किसी किताब की तकरीब रूनुमाई करेंगे, तो पहला काम हम ये करेंगे 100-200 खुद चंदा जमा करेंगे, किसी सियासतदान से, किसी वडेरे से, किसी जागीरदार के पास नहीं जाएंगे। वाह 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 वाह, डोनेशन के लिए। ठीक हो गया। हाँ, यानी खुद किफालत की तरफ आप चल पड़े। वाह, यानी कि हाँ, यानी कि ज़मीर को बचाया जाए। वाह 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 वाह। पहला काम हमने ये सोचा था जब बज़्म शऊर का नाम रखा, वाह, कि हम अपनी मदद आपके तहत काम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शहर वाले हैं, मैं उनकी भी दाद दूंगा कि हम प्रोग्राम सिर्फ तय कर लें तो वो हमसे इतना तावन करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हम कहते हैं हम कर लेंगे, लेकिन वो फिर भी हमारे दोस्त, हमारे इलाके वाले अदब की सरपरस्ती करते हैं। हक बनता है उनका, करनी भी चाहिए। बिल्कुल, वो करते हैं, उनकी मेहरबानी है। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गोया ए जज्बे खुददारी झुकने न दिया तूने, ए जज्बे खुददारी झुकने न दिया तूने, लिखने के लिए वरना सोने के कलम आते। बिल्कुल, तो आपने बज़्म शऊर के ज़ेर एहतमाम जो है वो इस खुददारी को संभाल के रखा हुआ है। माशाअल्लाह, हमने छोटे छोटे प्रोग्राम करवाए, इतना लंबा चौड़ा वसी पैमाने पे नहीं करवाया, लेकिन खुददारी के तहत। वाह 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 वाह, सलामत रहे, सलामत रहे। अच्छा, वहाँ जो मुकामी तारीख है या इलाकाई तारीख है, उस पर आपने कुछ काम किया? उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। तकरीबन मैं 60% काम हासिलपुर की तारीख का मुकम्मल कर चुका हूँ। फिर जब नात की तरफ आए तो उसने कुछ करने ही नहीं दिया।
सुभान नात अल्लाह। के अलावा उसने कुछ करने नहीं वाह दिया, वाह 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 वाह, फिर और कुछ करने के लिए रह भी नहीं जाता। रह भी नहीं हाँ, जाता। हाँ, वाह 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 वाह। वो जितना एक नाकाम मोहब्बत, उससे भी काम चलाया जा सकता, हम तो नात का काम ही चला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान गजल को भी ठप कर दिया, वाह तारीख को भी ठप कर दिया, वाह। तनकीद, कोई किताब डाक में दोस्त भेजता था उस पे तबसरा करते थे। अब नात की किताबें आती हैं, उस पे चंद हर्फ लिख देते हैं, वाह वाह वाह, चंद वाह, लफ्ज टूटे फूटे जो ज़हन में आते हैं किताब पढ़ने वाह, के बाद, वाह, वो भी वाह, एक वाह। सिलसिला है। गोया कसरे इदराक में विजदान के दर खुलते हैं और नात कहता हूँ तो इरफान के दर खुलते हैं। वाह 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 वाह, और ये दर खुले रहें और खुले रहेंगे इंशाल्लाह, खुले रहेंगे। अच्छा, और आपका कई गुले तर खिलते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इदराक के कई दर खुलते हैं और गुले दर खुलते हैं और गुले तर खिलते हैं। खिलते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, वहाँ मुकामी तौर पर जो आपका प्रेस क्लब है, जी जी, वहाँ भी बहुत सारी समाजी एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो उस जी, हवाले जी। से भी जरा बताइएगा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रेस वाले जो हैं वो एक तो सालाना मुशायरा करवाते हैं, ठीक है, बड़े वसी पैमाने पे होता है वहाँ मरकजी प्रेस क्लब, ठीक है, और छोटे मोटे प्रोग्राम जो हैं, किसी की किताब अच्छी लग जाए उसकी तकरीब रूनुमाई करा देते हैं, उसकी हौसला अफजाई, किसी के साथ शाम मना लेते हैं, उसकी हौसला अफजाई कर लेते हैं, कोई शायर फौत हो गया उसका ताज़ीती रेफरेंस रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो हमारे साथ बड़ा तावन करते हैं, यानी अदब की आबियारी में हमसे भी आगे हैं। वाह वाह वाह, हम तो उनके मुशीर के तौर पे काम कर रहे होते, बेचारे सारा काम खुद कर लेते हैं। वाह 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 वाह, खूब है, खूब है। यानी बड़े शहरों से दूर भी एक मज़ाफ़ात में भी जो है वो इल्म व अदब के चिराग जो हैं वो खूब रोशन है, खूब रोशन किए हुए हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, आप समझते हैं कि भाई ये जो आपकी बज़्म हसान है या बज़्म शऊर है, इसके अलावा भी कुछ और तंजीमें भी हैं जो आपके शाना बशाना कुछ काम कर रही हैं, या अलग उनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं कोई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारा इत्तेहाद है। अगर कोई करना चाहे तो हम एनजीओ कोई है वो कर लेती है। ठीक है, ठीक है। एनजीओ समाजी तंजीमें हैं, फलाही तंजीमें हैं, वो मुशायरा रख लेती हैं, ठीक है, तो हम उसमें सारे चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बड़े जो मराकज हैं, अदबी मराकज, उनमें जो रवायत होती है फलां जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, फलां का नाम काट दो इश्तिहार में, बिल्कुल ऐसी है। हाँ, हमारे यहाँ ये रवायत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी जो अदब में बेअदबी का रुझान है, हाँ, वो आपकी तरफ नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो नहीं लेकिन है। बड़े शहरों में पाया जाता है। बड़े शहरों में लाबियां होती हैं। बिल्कुल ऐसी है। यानी यहाँ दरबारी भी लोग हैं और सरकारी भी हैं। सरकारी भी हैं। बल्कि एक शेर पेश करने की इजाज़त दीजिए कि जो अदब में बेअदबी है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि लोग ज़ाती इंतकाम पर उतर आते हैं। और वो एक शेर के मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी औरों का बुरा सोचते हैं। तो मैं समझता हूँ ये गलत रिवायत है, इस रिवायत को ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल, ये ख़त्म होनी चाहिए। सुन रहे हैं। हाँ, ये तो अब उस वक़्त होती थी जब रसायल छपते थे, अखबारात छपते थे। अब तो हर चीज़ मोबाइल में है, मोबाइल जेब में, सोशल मीडिया जो है वो आपके साथ है। अब किस चीज़ की लड़ाई है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा इब्राहिम साहब, शायरी के अलावा कोई नसर की तरफ आए, कोई कॉलम निगारी शुरू की, या कुछ और चीज़ें ऐसी जो आपने अखबारात में छपवाई, कोई इस हवाले से कोई? किताबों पे तबसरे छपवाए, फिर ये पुराने साफी मुल्तान के जानते होंगे साबर चिश्ती मरहूम, तो वो मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में पढ़ते थे। तो अक्सर हमारा टाकरा सेंट्रल लाइब्रेरी में हो जाता था, तारीख की किताबें बाज़ का तो वो इधर से पकड़ लेता था, वही मैं उधर से पकड़ लेता था। अल्लाह हो। हाँ, मैं उनको दे देता था, आप पढ़ ले। वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, साबर चिश्ती साहब, बाद में मुल्तान में आके उन्होंने सहाफत की, बड़ा नाम कमाया मरहूम ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे आमीन, उनको। आमीन, आमीन। हाँ, तो उन्होंने 2004 में मुझे कहा
कि आप लोकल हिस्ट्री पे लिखें। ठीक हो गया। हाँ, तो फिर मेरे लोकल हिस्ट्री पे कॉलम छपे। ठीक हो गया, खूब। तो गया आप नज़्म के साथ साथ जो है वो नसर भी जारी और सारी है, लेकिन एक हद तक। हाँ, हिस्ट्री की हद तक है। बिल्कुल ठीक है। ये कॉलम वगैरह शाये हो गए, तफसीरें शाये हो गए। हाँ, वही रिसर्च वर्क आर्टिकल होता है, तहकीकी आर्टिकल। बिल्कुल ठीक है। इलाके के किसी बुजुर्ग पे, मस्जिद पे, दरबार पे, दरिया है, आपका तारीखी इलाका है ना? हाँ, तारीखी, वो उसी पे छपे हैं, या किताब पे तबसरा। वाह। गोया हमने लफ्जों में जिंदगी रख दी, हमने लफ्जों में जिंदगी रख दी, हम भी लगता है मर नहीं सकते। तो ये अल्फाज इंसानों को अमर कर देते हैं। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह इब्राहिम हसन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के ज़ेरे साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब इब्राहिम हसन का नातिया मजमूआ इरफान व अक़ीदत इस वक्त मेरे हाथ में है, और इसका जो इंतसाब है वो उन्होंने अपनी वालिदा माजिदा के नाम किया कि जिनकी आगोश मोहब्बत मेरे लिए हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दरसगाह थी। और इसमें जो शेर उन्होंने लिखा है वो मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगा कि माँ ने बचपन में मुझे ये भी नसीहत की थी, माँ ने बचपन में मुझे ये भी नसीहत की थी, जब तलक जिंदा रहूं आपकी मिदहत लिखूं। क्या खूबसूरत शेर है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इब्राहिम हसन साहब, बहुत खूबसूरत शेर है, कमाल है कमाल है। और इस किताब पर जिन हजरात ने तबसरे लिखे उसमें मिर्ज़ा खुर्शीद बेग मेलसवी कौमी सीरत अवार्ड याफ्ता और इज़्ज़त माब जनाब साहबजादा रशीद उस्मानी साहब भी शामिल हैं। तो मिर्ज़ा खुर्शीद बेग मेलसवी साहब के 2-3 जुमले मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगा कि इब्राहिम हसन का ये हुस्न बयान और इजहार अक़ीदत उन्हें सिर्फ़ इस सिनफ़ अव्वल में ले जाता है जिसमें हाली, इकबाल, मोहसिन काकोरवी, हफीज़ जालंधरी और हफीज़ ताइब नज़र आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो मिर्ज़ा खुर्शीद बेग मेलसवी साहब ने लिखी। यकीनन ये सनद है, ये एक एजाज़ है जनाब इब्राहिम हसन साहब आपके लिए। और इसी तरह साहबजादा रशीद उस्मानी साहब, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है, और इन्होंने भी इसी तरह लिखा है कि ये जो एहसास है नादगोई का, ये इब्राहिम हसन के जहन को ताबिंदा रखता है और माजी की तारीखों से निकाल कर मुस्तकबिल के उजालों से रोशनास भी कराता है। तो हसन साहब ये बताइएगा कि ये जो नातिया मजमुआ है ये कब शाया हुआ? ये राजा साहब 2013 में शाया हुआ जी। उसके बाद बंदा नचीज 3 किताबों का मवाद रखता है नात का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, और एक नात तवील है जो तकरीबन 1200 शेर की है। अच्छा, एक ही जमीन माशाल्लाह माशाल्लाह 1200 के करीब उसमें शेर हैं, और मजे वाली बात है कि उसमें 150 मतले हैं। आहा, हमा मतला उसमें 150 के करीब है। सुभान अल्लाह वाह वाह। वो भी ज़ेरे तबा है। उसके बाद मनकबत में सईदा खतून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो वो भी मेरे पास तवील हैं, 72 अशार पे शुहदाए करबला की निस्बत से 72 अशार पे मुश्तमिल उसका भी एक मजमुआ है। उसके बाद मौज़ूआती नज़में जो हैं वो मौजूद हैं। वाह। तो मैं ये चाहूँगा कि जो एक रिवायत है कि कलाम शायर बज़ुबान शायर, तो यकीनन आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, तो हमारे नाज़रीन को आप क्या सुनाना चाहेंगे? हाँ, मैं वही नात सुनाना चाहूँगा जो अहले हासिलपुर को बहुत पसंद है। जुबानी याद है आपको या इस किताब में से देखेंगे आप?
तुम्हारी रहमत रही बरसती कभी कहीं से कभी कहीं आहा, से। क्या मिसरा है, फिर पढ़िएगा इसे। वाह। तुम्हारी रहमत रही बरसती कभी कहीं से कभी कहीं से। वाह। बुझाई आलम ने प्यास अपनी कभी कहीं से कभी कहीं से। वाह वाह। तुम्हारी रहमत रही बरसती कभी कहीं से कभी कहीं से। खूबसूरत खूबसूरत। बुझाई आलम ने प्यास अपनी कभी कहीं से कभी कहीं से। शफीए आजम ने अपने रब से दुआएं मांगी हैं वरना अब तक। वाह। शफीए आजम ने अपने रब से दुआएं मांगी हैं वरना अब तक। हमारी खातिर जमीन फटती कभी कहीं से कभी कहीं से। शफीए आजम ने अपने रब से दुआएं मांगी हैं वरना अब तक। हमारी खातिर जमीन फटती कभी कहीं से कभी कहीं से। और ये आरज़ू है परिंदा होता तुम्हारे रोजे के गिर्द उड़ता। सुभान अल्लाह। ये आरज़ू है परिंदा होता तुम्हारे रोजे के गिर्द उड़ता। मैं तकता रहता तुम्हारी बस्ती कभी कहीं से कभी कहीं से। ये आरज़ू है परिंदा होता तुम्हारा ये आरज़ू है परिंदा होता तुम्हारे रोजे के गिर्द उड़ता। मैं तकता रहता तुम्हारी बस्ती कभी कहीं से कभी कहीं से। सुभान अल्लाह। और तुम्हारी आमद से पहले दुनिया में हुक्मरानी थी मासियत की। तुम्हारी आमद से पहले दुनिया में हुक्मरानी थी मासियत की। उजड़ रहा था निजाम हस्ती कभी कहीं से कभी कहीं से। और तेरी शरीयत को छोड़कर हमने थामा दामन तेरे उदू का। तेरी शरीयत को छोड़कर हमने थामा दामन तेरे उदू का। तभी तो मिलती है हमको पस्ती कभी कहीं से कभी कहीं से। क्या रवानी है। तेरी शरीयत को छोड़कर हमने थामा दामन तेरे उदू का। जभी तो मिलती है हमको पस्ती कभी कहीं से कभी कहीं से। तुम्हारी रहमत रही बरसती कभी कहीं से कभी कहीं से। वाह। बस ये अल्लाह ताला की देन है, तौफीक बड़ी है। रवां बहर है। और आपने जो रदीफ सेलेक्ट की है मैं समझता हूँ वो भी कमाल है, वो कमाल है। बल्कि एक शेर में आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि नात कब कारे हुनर है साहिब। नात कब कारे हुनर है साहिब। नात मेराजे बशर है साहिब। बिल्कुल। मैं कब नात लिखता हूँ। वाह वाह वाह। वो अता फरमाते हैं तो नात हाँ, होती है। मैं कब नात लिखता हूँ। मैं तो अभी कलम ही नहीं उठा पाता। सुभान अल्लाह सुभान। हम में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है, बशर में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि नात के लिए वो कलम ही उठा पाए, वो अपने लब को हिला पाए। बेशक सही कह रहे हैं। अच्छा इब्राहिम साहब, क्या आप समझते हैं कि शायरी या ख़ास तौर पर नातिया शायरी उसमें इस्लाह का अमल ज़रूरी है? जी, मैं तो इसको समझता हूँ कि इस्लाह का अमल ज़रूरी है। क्योंकि इस्लाह का अमल जो है ना, ये जिंदगी के हर शोबे में है। वाह। जो मशवरा है वो दीन इस्लाम जो हमारा फितरी दीन है, दीन फितरत है, दीन के फितरत के मुताबिक उसको मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो वो कुरान और हदीस के बाद तीसरा हल जो है मसले का वो मशवरा है। जब वाह वाह। तो शायरी में किस तरह उसकी जरूरत नहीं है इस्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूब। अच्छा, आप जो नौ आमोज शोरा हैं जी जी, उनको क्या कोई नसीहत करना चाहेंगे या उनके बारे में कोई ऐसा उनके लिए लाहे अमल के जिस पर अमल करके वो अपनी शायरी को बेहतर कर सकें? उनके लिए मशवरा है कि एक तो वो मुतालिया करें। ठीक है। एक तो मुताले की कमी सामने आ रही है जी। और दूसरा जो है वो किसी से मुतासर ना हो। ठीक है। किसी सीनियर से उसकी गजल अच्छी होगी, उसकी नात अच्छी होगी तो मुतासर ना हो कि किसी के चबाए हुए नवाले ना चबाए। वाह 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 वाह। अपना ख्याल सामने लाएं। हाँ, मुनफरिद इनफरादियत पैदा करें। वाह। एक मुताला करें, एक इनफरादियत पैदा करें। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा इब्राहिम साहब, हमारे प्रोग्राम के ये आखिरी लम्हात हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो अपने तजुर्बात की रोशनी में कोई खुसूसी पैगाम जो है जो भी आप देना चाहें
وہ 2-3 منٹ میں عطا فرمائیے. ہاں، خصوصی پیغام یہی ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور یہ محبت جو ہے یہ اللہ سے ہو، اس کے رسول سے ہو. یہ اس وقت امت مسلمہ کا تقاضا ہے. یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت. حب نبوی، سبحان اللہ. ہاں، حب نبوی، سیرت رسول، اطاعت، محبت اور اطاعت اس وقت کی اہم ضرورت ہے. ہمارے مسائل کا حل اس میں ہے. اور اسی طرح جو نعت گو شعراء ہیں ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے نام تک، تعریف تک محدود نہ رہیں. وہ آقا علیہ السلام کا پیغام، سیرت، آقا علیہ السلام کا اسلام، اس کا مطالعہ بھی کریں اور اس کی ترویج بھی کریں. نعت کا حصہ بنائیں اس کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا اہم پیغام ہے. ناظرین، صدر بزم حسان حاصل پور بزم شعور کے سرپرست معروف نعت کو شاعر جناب ابراہیم حسان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. ان سے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور ان کا جو خصوصی میسیج تھا، پیغام تھا، وہ بھی آپ نے سنا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم محبت و اطاعت اور سیرت و پیغام کو عام کریں تاکہ دنیا میں جو ہے وہ امن قائم ہو، محبت قائم ہو. اور یہ جو دنیا کے بہت سے مسائل ہیں جن میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اس کا حل بھی یہی ہے جو ابراہیم حسان صاحب نے کہا. اور میں اس شعر پر آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے جا رہا ہوں. ابراہیم حسان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ تشریف لائے، آپ نے کرم نوازی فرمائی. کہ اکمل وینس کا شکریہ، ماکس نیوز کا شکریہ، بدلتا زمانہ کا شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور وہ شعر یہ ہے کہ جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، 400 ان کے اجالا ہی اجالا ہوگا. ناظرین، پروگرام اہل قلم سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.